مشکل معاشی حالات سے نکلنے کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ روپے کو مستحکم کرنے کے لیے لگژری اشیاء کی درآمد پر پابندی لگائی گئی۔ صوبوں سے مل کر ایکسپورٹ انڈسٹری زون بنائیں گے۔ سابق حکومت نے وقت پر سستی LNG نہ خرید کر معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ پاکستان اور ترکی کے اشتراک کی بہترین مثال، کراچی شپ یارڈ میں جدید ترین PNS بدر کی لانچنگ، جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور سینسرز سے لیس۔ تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کو فروغ دے کر آگے بڑھنا ہے، ترکی کی مہارت اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم سے ترک وزیر دفاع کی ملاقات۔ جہاز سازی، انجینئرنگ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ٹرانسپورٹ سمیت تمام شعبوں میں دونوں برادر ممالک کے درمیان گہرے اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ ترکی کے تجربے اور مہارت سے ہر ممکن فائدہ اٹھایا جائے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ الیکشن کمیشن نے منحرف ارکان پنجاب اسمبلی سے متعلق ریفرنس منظور کر لیا۔ تحریک انصاف کے 25 ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ ایک ہفتہ پہلے الیکشن کمیشن کو گالی دے رہے تھے، عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پہ حملہ کرنے کی ہدایت کر رہے تھے، الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگ رہے تھے، وہ آج الیکشن کمیشن کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پنجاب حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی اکثریت برقرار رہے گی۔ PTI کو فیصلے پر خوشیاں منانے کے بجائے اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن میں زیر سماعت فوراً فنڈنگ کا فیصلہ بھی جلد ہونا چاہیے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ PTI کچھ بھی کر لے، شیر سے پنجاب چھیننے کا خواب چکنا چور ہوگا۔ پنجاب کے عوام کو فراگوگی کی لوٹ مار اور تباہی کے حوالے کرنے کا شدید غصہ ہے، جس کا حساب آئندہ انتخابات میں چکتا کر لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کو دن رات گالیاں دینے والے عمران خان کو آج تھوڑی سی شرم تو آئی ہوگی، مگر کہاں؟ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کل سے چین کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ چینی ہم منصب سے تجارتی اور اقتصادی تعاون، اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں پر پیش رفت اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی صدارت میں اجلاس، امن و امان اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ۔ 4 صوبوں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف سیکریٹریز اور IG پولیس شریک۔ راجہ ریاض احمد قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قائد حزب اختلاف کے عہدے کے لیے راجہ ریاض کی درخواست پر 16 اپوزیشن ارکان کے دستخط۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 490 روپے یقینی بنانے کی ہدایت، عوام کے لیے مزید آسانیاں پیدا کریں گے۔ چینی اور گھی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے تجاویز پیش کی جائیں، حمزہ شہباز شریف۔ اسلام آباد میں مقامی حکومت کے انتخابات 17 جولائی کو ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی 30 مئی سے 3 جون تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 20 جون کو جاری ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، ضلع کپواڑہ میں 1 نوجوان شہید۔ حق خود ارادیت کی جد و جہد کے شہداء کو کشمیری عوام کا سلام۔ میر وائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے ہال کی برسی پر کل مکمل ہڑتال ہوگی۔ یوکرین کے مختلف شہروں میں شدید لڑائی، 13 افراد ہلاک، 60 سے زائد مکانات تباہ۔ ماریوپول شہر میں اب تک 2000 یوکرینی جنگجو ہتھیار ڈال چکے ہیں، روسی وزارت دفاع کا دعویٰ۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار، جیکب آباد، موئن جدڑو اور لاڑکانہ میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ۔ شدید گرمی کے پیش نظر گھروں سے غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں، مشروبات کے استعمال کو یقینی بنائیں، ماہرین۔
اسلام آباد، راولپنڈی اور بالائی علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کا نیا سلسلہ داخل، منگل تک وقفے سے بارش کا امکان۔ پنجاب کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ انڈونیشیا میں ایشیا کپ کی تیاری کے لیے پریکٹس میچ۔ جنوبی کوریا نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ ایشیا کپ کا آغاز 23 مئی سے جکارتہ میں ہوگا۔ پول اے میں پاکستان، بھارت، جاپان اور انڈونیشیا شامل۔ پاکستان پہلا میچ 23 مئی کو بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عوامی سہولت پیکج کے تحت اب 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 650 سے کم ہو کر 490 روپے یعنی 160 روپے کم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اشیاء خورنوش پر 200 ارب روپے کی سبسڈی۔ ہم عوام کو تکلیف نہیں، ریلیف دینے آئے ہیں۔ حکومت پنجاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان نے عدم اعتماد کے ڈر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا، اب مشکل آن پڑی ہے تو پھر قربانی دینا پڑے گی۔ کراچی چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے 3.5 سال غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹے۔ غداری اور وفاداری کی بحث میں جائیں گے تو بات دور تک نکل جائے گی۔ تفصیل ضمیر عباس سے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ کے سی سی آئی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ ملک کی معیشت کا استحکام صنعتی شعبے کی ترقی سے جڑا ہے۔ کراچی میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی سرمایہ کاری کا تحفہ دیا گیا ہے۔ قیمتی زر مبادلہ بچانے کے لیے لگژری آئٹمز کی امپورٹ پر پابندی عائد کی ہے۔ فوری مقصد تھا کہ ہم جو سکیرس فورن ایکسچینج ہے اس کو ہم بچا لیں کسی طریقے سے، اور اس کو ہم سیو کریں تاکہ اس میں ڈالر میں ایک سٹیبلٹی آئے اور ہمارے پاس پیسے بچیں۔ $4 ارب اگر ہم بچاتے ہیں تو یہ وہ اماؤنٹ ہے جو پاکستان کے سارا جو خوردنی تیل ہے اس کے اوپر لگتا ہے۔ تو کیا یہ قومی خدمت ہے؟ یہ ڈس سروس ہے۔ $1 ارب اویلیبل ہے، سعودی عرب کا انویسٹمنٹ کا تحفہ ہے۔ میں آپ کو بطور خادم پاکستان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ڈی سیلینیشن آپ پلانٹس لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سال میں کراچی کے گھر گھر میں صاف پینے کا پانی اویلیبل ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سابقہ حکومت نے دانستہ طور پر پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دی تاکہ ملک معاشی بحران کا شکار ہو۔ غلط اور تاخیری فیصلوں سے مہنگی گیس خریدی گئی، جبکہ ڈالر بھی 115 سے 189 روپے کا ہو گیا۔ میں نے حلف لیا، اس دن تو ڈالر 189 پہ تھا، جو 115 روپے سے 2018 سے سفر کرتا ہوا 189 پہ آیا تھا۔ تو یہ جو 60-65 روپے کی اڑان تھی، اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ جال بچھایا جا رہا تھا کہ اگلی حکومت کا اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو یہ ساتھ جو ہے وہ جال میں پھنس جائے گا۔ اب لوڈ شیڈنگ پھر کیوں شروع ہوئی؟ مجھے بتائیں، کیا یہ سیاسی افراتفری کا نتیجہ ہے یا کہ بدترین انکمپٹنس، لیک آف پلاننگ، ایکسپیرئنس اور کرپشن کا نتیجہ ہے؟ اس کا فیصلہ کریں آج آپ۔ بدترین 3.5 سالوں کی گورننس کے بعد غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جائیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ دن رات محنت سے اس ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر کے سی سی آئی محمد ادریس اور چیئرمین بی ایم جی گروپ زبیر موتی والا نے وزیر اعظم کو ملک کے معاشی استحکام کے لیے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے لکشری اور غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر پابندی کے فیصلے سے سالانہ $4 ارب کی بچت ہوگی، جو پام آئل کی سالانہ درآمد کے لیے کافی ہے۔
कराची में कारोबारी बिरादरी से मुलाकात में उन्होंने कहा कि हमें बरामदी शोबों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना होगी। इसके साथ ग्रीन और काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार के लिए शमसी और हवा के शोबों को तरक्की देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता यही है कि मखदूश समाजी और इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए हम सब अनथक मेहनत करें। उन्होंने कहा कि चारों सूबों में एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे, बरामद कुनंदगान के मसाइल के हल के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तेल की दरामद पर सालाना 20 अरब डॉलर खर्च करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इस हवाले से इक़दाम करना होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा, जदीद तरीन PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब कराची शिपयार्ड में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि तिजारती और सनती सरगर्मियों को फ़रोग़ देकर हमने आगे बढ़ना है। तुर्की की महारत और टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अली असगर अरबा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची शिपयार्ड में पाक बहरिया के मेल्जियम क्लास कॉर्वेट जहाज PNS बदर की लॉन्चिंग की। PNS बदर जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लेस है, जो कराची शिपयार्ड में तुर्की की कंपनी असलत के ताउन से तैयार किया गया है। पाक तुर्क दोस्ती के तहत 4 जहाज तैयार करने हैं, जिनमें आज दूसरे जहाज की लॉन्चिंग की गई। इफ्तिताही तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने PNS बदर को पाक तुर्क दोस्ती की उम्दा मिसाल करार दिया। This is yet another great example of cooperation between Pakistan and Turkey under very able and dynamic leadership of President Tayyip Erdogan, who is not only a great brother, friend, but also a great supporter of Pakistan's cause, and under his leadership our mutual fraternal relations have transformed into much higher heights. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की ज्यादातर तजारत समंदर के रास्ते होती है। हुकूमत मेरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से इलाकाई राब्तों और तजारत को फ़रोग़ मिलेगा। चाहते हैं कि तुर्की भी इस अहम मंसूबे का हिस्सा हो। The ongoing China-Pakistan Economic Corridor project is set to translate our desire to enhance regional connectivity and maximize trade and transshipment with Gwadar at its focal point. I would like to avail of this opportunity to propose that let this CPEC be a trilateral arrangement between China, Pakistan and Turkey, and let us benefit from its wonderful potentials to benefit our nations. वज़ीर आज़म ने कोविड के बावजूद PNS बदर की बर वक्त तकमील पर पाक बहरिया के सरबराह और कराची शिपयार्ड की टेक्निकल टीम की खिदमात को सराहा और उनके लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने वीडियो बयान में कहा कि PNS बदर की तामीर दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों मुल्क हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों की तामीर के मुश्तरका मंसूबों पर काम कर रहे हैं। तुर्की के वज़ीर दिफा हुलूसी अकार ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इस मंसूबे को अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, हमें इस तर्ज के मजीद मुश्तरका मंसूबे शुरू करने चाहिए। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा कि मेरी टाइम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत बहरिया हमारी तरजीह है। तुर्की की कंपनी असलत के CEO असद अक्योन और कराची शिपयार्ड के MD रियर एडमिरल अतर सलीम ने मंसूबे की अहमियत और जहाज की खुसूसियात पर रोशनी डाली। PNS बदर समंदर से फिजा, समंदर से समंदर और सिताए समंदर से जेर समंद ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है। कराची शिपयार्ड में मेल्जियम जहाज की तैयारी पाक तुर्क दोस्ती की रोशन मिसाल है और इस जहाज की बहरी बेड़े में शमूलियत से पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतों में इजाफा होगा। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क वज़ीर दिफा हुलूसी आकार ने कराची में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आज़म ने जहाज साजी, इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट समेत तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के ताउन को सराहते हुए कहा कि बाहमी तजर्बात से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर पर गैर मुतसलसल हिमायत पर तुर्की की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ के 25 अरकान को डी सीट कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 23 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला 17 मई को महफूज किया गया था।
इलेक्शन कमीशन के फैसले से पंजाब हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुस्लिम लीग और इत्तेहादियों की अक्सरियत बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि पीटीआई को फैसले पर खुशियां मनाने की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत फौरन फंडिंग का फैसला भी जल्द होना चाहिए। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफसल। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल नालायकी और नाअहली का बाजार गर्म रहा। मुनहरिफ अराकीन ने इमरान खान की पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक हफ्ता कबल इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पंजाब हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो फैसला आया है 25 अराकीन की डी सीट का, इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 25 लोग अगर डी सीट होते हैं तब भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है। ये 25 तमाचे इमरान खान साहब के मुंह पे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बदतरीन एहतसाब के बावजूद इमरान खान करप्शन का एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं कर सका। जब रात के अंधेरे में अदालतें खुलें आइन को बचाने के लिए, आइन पे हमले को बचाने के लिए, आइन शिकन के खिलाफ, उस वक़्त अदालतों को और जजेस को धमकी दो, उनकी फैमिलीज़ और उनको मलाइन करो, उनके खिलाफ ट्विटर हैंडल्स के ज़रिए, अपनी जमात के ट्विटर हैंडल्स के ज़रिए एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाओ। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमरान खान फराह गोगी को प्रॉपर्टी का कारोबार करवाता रहा। जब भी इलेक्शन हुए तो इमरान खान मुल्क के लिए माजी बन जाएगा। मेरा सवाल इमरान खान और पीटीआई से है कि आज आप दोबारा ये मुतालबा करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब रिज़ाइन करें। जो कहते हैं कि हम इक़्तिदार पे लानत भेजते हैं, क्या अपने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली से कहेंगे कि वो सरकारी गाड़ी वापस कर दें? वो सरकार का माल है, आपके मामे चाचे का नहीं है। जो मुलाजमीन वो अपने साथ ले गए हैं, क्या वो वापस करेंगे? क्या उनके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सरकारी कौमी असम्बली की गाड़ियाँ वापस करेंगे? वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब और फैसल करीम कुंडी का कहना था कि अवाम जानते हैं किसने महंगाई और बेरोजगारी पैदा की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क से महंगाई और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन का फैसला इत्तेहादियों के साथ मिलकर करेंगे। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि तहरीक इंसाफ कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सूबे के अवाम को फरागोगी की लूट मार और तबाही के हवाले कर देने पर शदीद गुस्सा है, जिसका हिसाब वो इंतखाबात में चुकता कर देंगे। मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देने वाले इमरान खान को आज थोड़ी सी शर्म तो आई होगी, मगर कहां। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहां पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वजीर आला पंजाब अवामी सहूलत पैकेज के तहत अब 10 किलो आटे के थैले की कीमत 650 से कम होकर 490 रुपए यानी 160 रुपए कम। वजीर आला पंजाब की जानिब से अशियाए खोरनोश पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी। हम अवाम को तकलीफ नहीं रिलीफ देने आए हैं। हुकूमत पंजाब। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी कल से चीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर और वजारत खारजा के आला हुक्काम भी वफ्द का हिस्सा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा वज़ीर खारजा वांग जी की खुसूसी दावत पर हो रहा है। दोनों वज़राए खारजा तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर खुसूसी तवज्जो के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। इक़्तिसादी राहदारी के तहत मंसूबों पर पेशरफ्त और अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरका ने चीनी शहरियों की सलामती से मुतालिक उमूर पर भी गौर किया। वजारत दाखिला चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस इजलास में शरीक हुए। कौमी असेंबली को बताया गया है कि गुज़श्ता 4 साल नेशनल एक्शन प्लान को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, जिसकी तफसील ऐवान में पेश की जाएगी। तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से।
قومی اسمبلی میں مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں اور نیکٹا کو فعال کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی پاکستان کے اندر دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، لیکن یہ ضروری ہے دیکھنا کہ پچھلے 4 سال میں جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے، جس کو بالکل یہاں ممبر نے کہا کہ وزیر اعظم اس کو چیئر کرتے ہیں، اس کی ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی۔ نیشنل ایکشن پلان کو کمپلیٹلی 4 سال نظر انداز کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ اہم ریاستی اداروں کو بدنام کرنا آئین کے برعکس ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 4 سالہ دور حکومت میں جعلی ٹویٹر ہینڈلز، یوٹیوبرز اور بلاگرز کے ذریعے ریاستی اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی گئی، جس کی تفصیلات جلد ہی ایوان میں پیش کی جائیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ جب بھی اخلاقیات کے برعکس کوئی اشتہار چلتا ہے تو پیمرا سیکشن 27 کے تحت نوٹس لیتا ہے۔ ایسے اشتہار پر جرمانہ عائد نہیں کیا جاتا بلکہ بند کر دیتے ہیں۔ اگر ایڈٹ کر کے درست ہو سکتا ہو تو ایسا بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزارت اطلاعات کے کسی بھی ادارے میں قواعد کے برعکس برتیاں ہوئی ہیں تو ہم نے آتے ہی ایکشن لیا ہے اور ایسے لوگوں کو برطرف کر دیا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور قومی اسمبلی نے مالیاتی ذمہ داری اور حد قرض ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سستی اور ماحول دوست توانائی کے لیے قابل تجدید ذرائع پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں نمود مسلم۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی صدارت میں ہوا۔ مالی ذمہ داری اور حد قرض ایکٹ میں ترمیم کا بل وزیر مملکت خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے پیش کیا، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 70% بجلی درآمدی ایندھن جبکہ 30% مقامی وسائل سے پیدا کی جا رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی جاوید عباسی نے کہا کہ 5G کے حوالے سے پالیسی بننے کے لیے 8 سے 9 ماہ میں ٹیکنالوجی لانچ کی جائے گی۔ ملک کے 80% علاقوں میں انٹرنیٹ کی 4G سہولت موجود ہے۔ 4G لانچ کیا گیا تو ان کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا پہلے 6 سالوں میں ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز کو دیا گیا تھا، اور پھر 6 سال کے دوران انہوں نے اس کو پورے ملک کے اندر لانچ کرنا تھا۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ پچھلی غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بھیجا کہ فائنانس کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بھی، پھر قومی سلامتی کمیٹی میں وہ ساری چیزیں ڈسکس ہونا چاہیے، پھر وہاں فیصلے ہونے چاہیے کہ پچھلے 4 سالوں میں بگاڑ کس نے پیدا کیا، تباہی کس نے کی، اور 4 ہفتوں کی حکومت پر الزام کس طرح لگایا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں سابق وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی، پشاور میں شہید ہونے والے SHO اور دیگر واقعات میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعا کروائی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ناظرین، حکومت نے معاشی استحکام اور روپے کی قدر میں کمی روکنے کے لیے غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم متعلقہ اشیاء کی روپے میں درآمد کی صورت میں پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مزید تفصیل بتائیں گے لاہور سے صادق بلوچ۔ حکومت پاکستان نے ملکی معیشت کو سنبھالنے اور روپے کی گرتی قدر کو روکنے کے لیے بیرون ملک سے غیر ضروری لگژری اشیاء کی درآمد پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت بیرون ملک سے موبائل فونز، میک اپ کا سامان، چاکلیٹ، چشمے، سگریٹ، جوسز، کراکری، فروزن فوڈز، ڈرائی فروٹس، گوشت، شیمپو، بیکری آئٹمز، ڈیکوریشن کی اشیاء، جیم، جیلی اور جیولری سمیت 39 اشیاء کی ڈالرز میں درآمد نہیں ہو سکے گی۔ میں ریلی سلوٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو اس اقدام پہ۔ ہر پاکستانی پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہر پاکستانی چاہے گا کہ پاکستان کا نام ہمیشہ رہے، کیونکہ ہماری عزت، ہمارا نام، ہماری پہچان پاکستان کے ساتھ ہے۔ حکومتی فیصلے کے تحت امپورٹڈ گھریلو استعمال کی اشیاء، پرائیویٹ اسلحہ، لائٹنگ کا سامان سوائے انرجی سیورز، ہیڈ فونز، لاؤڈ سپیکرز، فرنیچر، ٹریولنگ بیگز اور سوٹ کیسز، سینیٹری کی اشیاء، افغانستان کے علاوہ کسی بھی ملک سے قالین، آٹو موبائلز، آئس کریم، سیلون کی اشیاء، لگژری استعمال کے آئٹمز، موسیقی کے آلات وغیرہ بھی ڈالرز میں نہیں منگوائے جا سکیں گے۔ اس فیصلے کا مقصد ڈالر کی بڑھتی قیمت کو روکنے کے ساتھ ساتھ ملکی سطح پر تیار اشیاء کے استعمال کی ترغیب دینا ہے
दुकानदारों और शहरियों ने इस फैसले को सराहा। ये बहुत ही अच्छा फैसला, हम तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और इससे इंशाल्लाह ताला हमारी मुल्क की मईशत पर बहुत ज़्यादा अच्छे दूररस और इन शॉर्ट कमिंग और फोर्थ कमिंग टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। जो भी मतलब है इम्पोर्टेड आइटम उसको कंट्रोल में होना चाहिए, और बल्कि बाहर से इम्पोर्ट बंद कर दिया, ये बहुत अच्छा फैसला है। डॉलर्स में दरामदाद हमेशा मुल्क की मईशत पर बोझ साबित होती हैं और इस तरह के फैसले मुआशी तवाज़ुन पैदा करते हैं। लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी से मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के साथ साथ मुल्की सतह पर तैयार अशिया की हौसला अफजाई होगी। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ताजिर बरादरी की बात करें तो पीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदे शाहरुख शफी से गुफ्तगू करते हुए ताजिर बरादरी ने पुरतायुश अशिया की दरामद पर पाबंदी समेत हुकूमत के मौशी फैसलों को खुशाइन करार दिया है। हुकूमत की अवलीन तरजीह मईशत को दुरुस्त सिमत पर गामजन करना है। डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने गैर ज़रूरी लग्जरी आइटम पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है, जिससे अंदाज़न $6 बिलियन मुल्की ख़जाने से बाहर मुंतकिल होने से महफूज रहेंगे और मुल्की सनत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। इस हवाले से ताजिर बरादरी क्या कहती है, आइए जानते हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा खुश आइन कदम है। पिछले दिनों हम देख रहे हैं, पिछले 10 महीनों के अंदर हमारे जो खाने पीने की अशिया हैं वो तकरीबन 24.7 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हुई है, जो कि इस जैसे मुल्क के जो हमारे इस्लामिक इकॉनमी के हालात हैं उसमें इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, बेहतरी आएगी। सनती लेवल के ऊपर ये अच्छा डिसीजन है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो नीचे जा रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है और ये शायद रिक्वायर्ड भी था। नाज़रीन, राजा रियाज अहमद को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए राजा रियाज अहमद और गौस बख्श खान मेहर ने अपनी दरखास्तें जमा कराईं। राजा रियाज अहमद की दरखास्त पर 16 अपोजिशन अरकान, जबकि गौस बख्श खान मेहर की दरखास्त पर 6 अरकान के दस्तखत थे। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हिदायत की है कि सूबे में 10 किलो आटे की 490 रुपए में वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि फ्लोर मिल्स से मार्केट तक सस्ते आटे की सप्लाई चेन के लिए जामे मैकेनिज्म वज़ा किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि हम आवाम के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करेंगे। चीनी और घी की कीमतों में कमी लाने के लिए तजावीज़ पेश की जाएँ। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में डेंगू और हैज़े से बचाव के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मुतालिका महकमे फ़ाल अंदाज में काम करें और अमराज की रोकथाम के लिए कोई कसर उठा ना रखें। उन्होंने हिदायत की कि निचली सतह पर कमेटियां तश्कील देकर सर्विलेंस के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग जारी रखी जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सरकारी दस्तावेजात अफशा करने वाले नैब एहलकार को नौकरी से बरतरफ करने का फैसला बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी। नैब सखर के साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर फ़हीमुल्लाह ने खुफिया सरकारी मालूमात गैर कानूनी तौर पर एक मतलूब मुलजिम को फराहम की थी, जिसकी बुनियाद पर नैब केस में एक मतलूब शख्स गिरफ्तारी से बचकर फरार हो गया था। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत के इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 30 मई से 3 जून तक जमा होंगे और जांच पड़ताल का मरहला 6 से 8 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 20 जून को जारी होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा है कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा अमरीका कामयाब रहा। अपने दौरे में उन्होंने 2 इजलासों में शिरकत की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्लामती काउंसिल में वज़ीर खारजा ने मसले कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर किया और उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि OIC ने 16 मई को मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी हदबंदियों की मजम्मत करते हुए उसकी मुतनाज़ा हैसियत के हवाले से अपने दरीना और उसूली मौक़िफ़ का अयादा किया। आसिम इफ्तिखार ने साबिक वज़ीर खारिजा आसिफ अहमद अली के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि मसला कश्मीर पर मुश्तरका लाहे अमल के लिए तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाया जाएगा। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के मौके पर कही। वज़ारत खारजा के हुकाम ने मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया। इजलास में मकबूजा कश्मीर में नई हदबंदियों और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमात पर भी गौर हुआ। और आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुपवाड़ा में एक नौजवान शहीद कर दिया।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने नौजवान को जिला के इलाके टंडगार के एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इत्तलात आने तक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। मुमताज आज़ादी पसंद रहनुमाओं मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन और शोहदाए हॉल की बरसियों के मौके पर कल 21 मई को मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है, जिसका मकसद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की गैर कानूनी नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक को नामालूम मुसल्लह अफराद ने 21 मई 1990 को श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। उसी रोज श्रीनगर के इलाके हॉल में भारतीय फौजियों ने उनके जनाजे के शुरका पर अंधाधुंध फायरिंग करके 70 सौगवारों को शहीद कर दिया था। 12 बरस बाद 2002 में इसी दिन नामालूम मुसल्लह अफराद ने ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को उस वक्त शहीद कर दिया था जब वो मज़ार शोहदा श्रीनगर पर एक अवामी इज्तिमा से खिताब के बाद लौट रहे थे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने श्रीनगर से एक बयान में भारतीय हुकूमत की तरफ से पार्टी चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि कश्मीरी अवाम अपने रहनुमाओं के खिलाफ इस तरह के मुतसिबाना और गैर मुनसिफाना अदालती फैसलों को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। हुर्रियत रहनुमाओं बिलाल अहमद सिद्दीकी, सैयद बशीर इंदराबी, ख्वाजा फिरदौस, अब्दुल समद इनकलाबी और डॉक्टर मासब ने अपने बयानात में नाम निहाद ट्रायल और उसके नतीजे में यासीन मलिक के खिलाफ मुतसिबाना अदालती फैसले को भारतीय हुकूमत की तरफ से सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार दिया। नाज़रीन, भारतीय सिफारतकार की जानिब से जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार देने पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर का करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर इमरान खान ने कहा है कि गैर कानूनी कब्जे का शिकार मकबूजा जम्मू कश्मीर न कभी भारत का हिस्सा रहा है और न अब इस पर भारत का कोई हक है। मकबूजा जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की रोशनी में एक मुतनाज़ा इलाका है जिसके मुस्तक़बिल के फैसले का इख्तियार अहलियान कश्मीर के पास है। पाकिस्तानी काउंसलर ने वाज़ेह किया कि भारत मकबूजा कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद तस्लीम कर चुका है जिस पर अमल दरामद होना है। नाज़रीन, खबरनामे में शामिल मज़ीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वजीर आला पंजाब अवामी सहूलत पैकेज के तहत अब 10 किलो आटे के थैले की कीमत 650 से कम होकर 490 रुपए यानी 160 रुपए कम। वजीर आला पंजाब की जानिब से अशियाए खोरनोश पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी। हम अवाम को तकलीफ नहीं रिलीफ देने आए हैं। हुकूमत पंजाब। नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे शेयर करते हुए आपको बताएं कि सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं, ताहम बाज़ इलाकों में हल्की बारिश के बाद हैदराबाद, कराची, ठट्ठा और मीरपुर खास में मौसम के मिजाज में तब्दीली महसूस की जा रही है। शिराज अली डाहरी की रिपोर्ट देखिए। हालिया दिनों में चलने वाली गर्मी की लहर आज भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी रही। गर्म हवाओं और तेज धूप से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। सबसे ज्यादा गर्मी और तपिश जैकबाबाद और लाड़काना में रही, जहां पारा 49 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि लाड़काना, दादू और शहीद बेनज़ीराबाद भी गर्म तरीन शहरों में शामिल थे। मशरूबात के अंदर कॉफ़ी, कैफ़ीन या जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस हैं जिनके अंदर डायूरेटिक्स थोड़ा एलिमेंट ज़्यादा होता है, इनका इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर है। इससे फर्दर डिहाइड्रेशन होगी। कपड़े पहनने में लूज़ फिटेड कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग ना करें, उससे ये होगा कि बॉडी की हीट डिस्पर्स ऑफ नहीं होती है। गर्मी की लहर से अब तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गैस्ट्रो के 15,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की है। जबकि दूसरी तरफ हैदराबाद, कराची, ठट्टा और मीरपुर खास में गर्मी की शिद्दत में कमी आई है और इन इलाकों में पारा 35 से 40 सेंटीग्रेड के दरमियान रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाड़काना, सखर और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में मज़ीद चंद रोज़ हब्स और तपिश की वजह से पारा हाई रहने का इम्कान है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, हैदराबाद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे। नवीद हयात की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। लाहौर और उसके गिरदोनवा आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे,
جس سے لوگوں کی معمولات زندگی متاثر ہوئیں۔ شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 25% رہا۔ جو اصل معاملہ نا وہ ہیٹ کا ہے، اس کو اوائڈ کریں، کپڑا رکھیں اور ذرا کام وام جو ہے وہ ایسا کوشش کریں کہ آپ دوپہر کے وقت نہ نکلیں، شام کو کام نکلنا ہے۔ گرمی کی وجہ سے آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے کم باہر نکلنا چاہیے۔ بہت زیادہ گرمی ہے، ایسا ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے جو عام طور پہ چھتری وغیرہ کا استعمال کیا جائے وہ کیا جائے، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جائے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کے روز شہر کے کچھ مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے، جس سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ جو لاہور کی صورتحال ہے اس میں آئندہ 2 دن تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن 23 تاریخ کو لاہور میں کوئی ہلکی بارش ہو سکتی ہے، جس سے جو ٹمپریچر جو ہے وقتی طور پہ کم ہوں گے، لیکن جو مئی کا مہینہ تو اس میں ٹمپریچر جو ہے تقریباً 40 کی رینج میں رہے گا، 40 ڈگری سینٹی گریڈ۔ طبی ماہرین کے مطابق شہریوں کو چاہیے کہ شدید گرمی کے پیش نظر گھروں سے غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیز کریں اور جسم میں پانی کی قلت کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ مشروبات کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوتے ہی جڑواں شہروں کا موسم بھی بدل گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 4 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیل کیا ہے جان لیتے ہیں ملک عمر سے۔ جڑواں شہروں میں موسم بدلتے ہی چلچلاتی دھوپ کی جگہ سیاہ بادلوں کے خوشگوار سائے نے لے لی ہے اور لو جیسے تھپیڑوں کی بجائے خنک ہوا کے جھونکے ماحول کو اور بھی خوشگوار بنا رہے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے جاری گرمی کی شدید لہر سے پریشان لوگوں نے بارش برسنے پہ بالآخر سکھ کا سانس لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 4 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ یہ بارشوں کا سلسلہ جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ 24 تاریخ تک ہے۔ بارش ویسے زیادہ جو ہے وہ منڈے اور ٹیوزڈے کو ہو سکتی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا موسم پھر گرم ہو جائے گا، چونکہ ابھی تک جون کا مہینہ آنے والا ہے، جون کا پہلا ہفتہ بھی لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی گرمی ہوگی اور یہ مئی کا آخری دن جو ہوں گے وہ بھی گرم ہوں گے، تو اس کے بعد پھر اگلے مہینے پری مونسون کی بارشیں یا پھر آگے مونسون شروع ہو جائے گا، تو یہ جو ہیٹ ویو کنڈیشن ہے وہ تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی کم ہو جائے۔ جڑواں شہروں میں گزشتہ روز شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ گاہے بگاہے جاری ہے۔ گرم اور خشک موسم کی شدت ٹوٹنے سے نہ صرف ماحول خوشگوار ہو گیا ہے بلکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بارشوں کے اس سلسلے سے وبائی امراض میں بھی کمی آئے گی۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران پنجاب کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں آندھی چلنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکاب آباد، موہنجو داڑو، لاڑکانہ 49، شہید بے نظیر آباد، خیرپور اور دادو میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، بات کرتے ہیں بلوچستان کے، جہاں کے ضلع شیرانی میں صنوبر کے درختوں کو آگ لگنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس آگ نے 7 کلومیٹر علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے واقعے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ زخمیوں کو فوری طور پر برن سینٹرز منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کو ضلع شیرانی کے جنگلات میں آتش زدگی کے واقعے میں بریف کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ آگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ آتش زدگی سے جنگلی حیات بھی متاثر ہو رہی ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں متاثرین کے لیے 100 خیموں پر مشتمل سٹی قائم کر کے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان کی صدارت میں ٹاسک فورس کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ شرکاء نے ملک کے مختلف حصوں میں گرمی کی شدت اور پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں بلوچستان میں آگ بھڑکانے کے واقعات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ وفاقی وزیر شیری رحمان نے کہا کہ آتش زدگی کے ان واقعات کی روک تھام کے لیے صوبوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق عوامی آگاہی کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر اور مربوط حکمت عملی ناگزیر ہے۔
मौसमियाती तब्दीली के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी ने हिदायत की है कि जंगलात को आग से महफूज रखने के लिए जदीद आलात और सामान हासिल किया जाए। कमेटी के इजलास की तफसील जानते हैं अनीस आवान से। सेनेट की कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली का इजलास सेनेटर सिमी एजदी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। CDA, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और वजारत के हुक्काम ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक खातून की वीडियो के बारे में हुक्काम ने बताया कि आग लगने का वाकया मारगला का नहीं बल्कि खैबर पुख्तनख्वा का है। वफाकी वजीर शेरी रहमान ने कमेटी को बताया कि लकड़ी चोरी करने के बाद जंगलों में आग लगाई जाती है। आग के वाकयात की रोकथाम के लिए तमाम सूबों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और कमेटी के दीगर अरकान ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड अमले के आग बुझाने के तरीकाकार पर तशवीश का इजहार किया। कमेटी के अरकान ने मारगला की पहाड़ियों पर कायम इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ की मुख्तलिफ पिकेट्स का दौरा भी किया। दौरे के मौका पर हुक्काम की जानिब से शुरका को आग बुझाने के तरीकाकार के हवाले से आगाह किया गया। कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी मुख्तलिफ इदारों में, वजारत माहौलियात की, NDMA, CDA, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और पार्लियामेंट, और हम हैं डायरेक्शन देने के लिए। और चीज़ें भी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं हीट वेव में, जैसे कि गाड़ियों के फ्यूम्स हैं, जैसे कि गर्मियों में ACs चल पड़ते हैं, उनमें से कितनी वो गर्मी निकलती है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ हैं उनके जो धुएँ निकलते हैं फर्नेस से वो होते हैं। उसके लिए हर तरह के इक़दाम लेने चाहिए। मौसम अच्छा होता है तो बारबेक्यू की तरफ आते हैं, प्लीज़ बारबेक्यू ना करें। कमेटी अरकान ने महकमे की जानिब से मारगला के जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहते हुए मज़ीद इक़दाम करने की हिदायत की। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में शदीद गर्म मौसम में कपास की बुवाई का अमल जारी है। मौसमी हालात और पानी की कमी की वजह से इस अहम फसल की पैदावार भी मुतासिर होने का खदशा है। महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को 31 मई तक कपास की काश्त की हिदायत की गई है। मज़ीद तफसील जानते हैं फरहान मिर्जा से। रवा सीजन में मौसम खरीफ की अहम फसलों में कपास सरे फहरिस्त है। हीट वेव और शदीद गर्मी के बावजूद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कपास की बुवाई का अमल जारी है। ज़रई माहिरीन के मुताबिक काश्तकार 31 मई तक हर सूरत में काश्त के अमल को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान के ज़रई खिते पंजाब में इस साल 40 लाख एकड़ रकबे पर कपास की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि इसका पैदावारी हदफ 66 लाख गांठ है। खुशाइंद बात यह है कि अब तक मुकर्ररा हदफ के 40% रकबे से जायद पर कपास की काश्त मुकम्मल हो चुकी है। गर्म मौसम रहा है और लू चल रही है, इसकी वजह से अभी तक हमें कोई इंसेक्ट का प्रेशर या उसके लिए स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अब तक फसल बेहतर है। लेकिन अगर आइंदा बारिशें होंगी उस वक्त कोई इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम आ सकता है। महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक IPM मॉडल पर अमल दरामद के साथ साथ PP रोप्स और ज़रई जहरों पर काश्तकारों को सब्सिडी फराहम कर रहे हैं ताकि लागत की काश्त में कमी आ सके। मौजूदा कपास की फसल को इस साल पानी की कमी का भी सामना है। कपास की अच्छी मुनाफा बख्श पैदावार के हसूल के लिए बेहतर मैनेजमेंट के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी की काश्तकारों को फरहमी के अमली इक़दामात मौजूदा वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़रई माहिरीन के मुताबिक काश्तकार भाई 1 एकड़ रकबे पर 23 से 25 हज़ार पौधे लगाएं और उनके दरमियान मुनासिब फासला रखें। इस अमल से कपास की बेहतरीन पैदावार हासिल हो सकती है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मुल्कों के ताल्लुकात में कौमी मफाद सबसे अहम होता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती शायद इससे कुछ बढ़कर है। जी हाँ, दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात के हवाले से नम्रा सुहेल की रिपोर्ट देखिए। तारीख के सफ़ों में 21 मई 1951 को पाकिस्तान के चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद ये रिश्ता वक्त के साथ साथ मजबूत होता रहा। पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में पहला मुल्क था जिसने इनकलाब के बाद अवामी जमहूरिया चीन को तस्लीम किया। उस वक्त तो ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान और चीन कभी बेहतरीन दोस्त होंगे और उनकी दोस्ती हर किस्म के मौसम की आजमाइश से कामयाबी से गुजरेगी। पाक चीन ताल्लुकात में अहम संगे मील शाहराह रेशम का रास्ता खुलना था, जिसने चीन के सूबे शिनकियांग को वादी हुंजा से मिला दिया था। दोनों बरादर मुल्क एक दूसरे के तारीखी और सकाफती बंधन में तो बंधे ही हैं, इसके साथ साथ माशी, इक्तिसादी,
दिफाई और तवानाई समेत दीगर मंसूबों पर पाक चीन ताउन मिसाली है। पाक चीन तारीखी दोस्ती में एक अहम मकाम उस वक्त आया जब चीन के इश्तराक से पाकिस्तान में इक्तिसादी राहदारी का सबसे बड़ा मंसूबा सी पैक शुरू हुआ। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने चीन के साथ अजीम दोस्ती उस वक्त निभाई जब कई साल तक मुसलसल जद्दोजहद करके अमरीका को चीन के साथ कशीदगी खत्म करने पर रजामंद किया और उस वक्त के अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर के दौरे चीन में उनकी मावनत की। जब दुनिया भर में कोरोना वबा ने अपने पंजे गाड़े तो चीन की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की फराहमी से पाकिस्तान में कीमती जानों को बचाया गया। सिफारती सतह पर चीन के साथ आज हम जहां खड़े हैं इसमें पाक चीन मुशावरती अमल अहम है, जिसमें वज़ाए खारजा के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग, सियासी मुशावरत, जनूबी एशिया, हथियारों की रोकथाम, इंसदादी दहशतगर्दी, इंसानी हकूक, अमन के क़याम, समुद्री अमूर, सरहदी इंतज़ाम और काउंसलर अमूर पर मुशावरत शामिल है। चीन पाकिस्तान का न सिर्फ सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन ताल्लुकात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। समुंदरों से गहरे, हिमालय से ऊंचे और शहद से मीठे ताल्लुकात, दोस्ती का ना रुकने वाला ये सफ़र 71 साल से जारी है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक जॉइंट वर्किंग ग्रुप में शामिल मनसूबों का जायजा लिया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की गफलत की वजह से गवादर बंदरगाह की गहराई कम होकर 11 मीटर रह गई, जबकि जहाज़ रानी के लिए कम अज़ कम 18 मीटर होनी चाहिए। इस वजह से बड़े जहाज़ लंगर अंदाज नहीं हो सकते। उन्होंने गवादर बंदरगाह पर ड्रिजिंग का अमल फौरी शुरू करने के अहकाम जारी किए। एहसन इकबाल ने ML1 मंसूबे में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इल्तवा की वजह से मंसूबे की मजमूई लागत में खातिर खा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे को ऑरेंज लाइन लाहौर की तर्ज पर मुकम्मल किया जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मुश्तरका ताउन कमेटी के आइंदा इजलास में मानसेरा, मुजफ्फराबाद, बाबूसर और जोब DI खान के मंसूबों को भी शामिल करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पावर सेक्टर में दरपेश मुश्किल सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। RLNG सप्लाई मिलने के बाद मुल्क में बिजली की तरसील में बेहतरी आएगी। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि RLNG और फर्नेस ऑयल की फ्राहमी के बाद मजीद गैस भी मैसर होगी, जिससे लोड मैनेजमेंट में काफ़ी हद तक आसानी होगी। सुई और डेरा बुगटी की आवाम को सेहत और पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने आलमी इदारा सेहत के कंट्री सरबराह माही पाला पालिथा और वजारत सेहत के हुक्काम के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पानी का मंसूबा 2 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। WHO की तरफ से थैलेसीमिया सेंटर के क़याम का ऐलान, अद्वियात की फराहमी और एम्बुलेंस अतिया की गई है। उन्होंने कहा कि मकामी हस्पतालों को दरकार आलात की फराहमी के लिए वजारत सेहत की तरफ से भी यकीन दहानी कराई गई है। नाज़रीन, यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में शदीद लड़ाई की इतलात हैं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यूक्रेन के मशरक़ी डोंबास इलाके को रूसी अफवाज ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। होलेंसिक के गवर्नर का कहना है कि रूसी अफवाज इलाकाई मरकज और की तरफ बढ़ रहे हैं। रूसी फौजियों की फायरिंग से 13 अफराद हलाक जबकि 60 से ज़ायद मकानात तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन की ऑसफ रेजिमेंट ने कहा है कि फौजी कमांडर ने जान बचाने के लिए मारियोपोल के दिफा को ख़त्म करने का हुक्म दिया है। रूस के वज़ीर दिफा का कहना है कि मारियोपोल में अब तक 2000 यूक्रेनी जंगजुओं ने स्टील कारखाने में हथियार डाल दिए हैं। रूस की पार्लियामेंट एक बिल पर गौर कर रही है जिसके तहत 40 साल से ज़ायद उम्र के रूसी और 30 साल से ज़ायद उम्र के गैर मुल्की शहरियों को फौज में शामिल करने की मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मार्क मिली ने अपने रूसी हम मनसब जनरल वेलरी ग्रासमोफ से टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रूसी अफवाज के यूक्रेन पर हमले के बाद ये पहली टेलीफोनिक गुफ्तगू थी। इस मौके पर सिक्योरिटी से मुतालिक तशवीशनाक सूरत हाल और दीगर मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में राब्ते रखने पर इत्तेफाक किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि दहशतगर्द तंजीमों की नेटो में शमूलियत की मंजूरी नहीं दी जा सकती।
स्वीडन और फिनलैंड YPG और PKK जैसे दहशतगर्दों को असलहा फराहम कर रहे हैं। इस्तांबुल में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि फिनलैंड और स्वीडन इन दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। इन तंजीमों के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत भी फराहम कर दिए गए हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं अताउल्लाह तारड़ और सरदार उवैस लगारी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुशी का इजहार करने वाले जहन नशीन कर लें कि पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही। तफसील बता रहे हैं ताहिर क्लासरा। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन का एहतराम करते हैं, लेकिन इस फैसले पर अपील का हक और अपनी राय रखना हमारा जमहूरी इस्तेहकाक है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हमारी इलेक्शन कमीशन से इल्तिजा है कि वो फॉरेन फंडिंग केस का भी जल्द फैसला सुनाए। 165 पे हम है, 165 पे PMLN, 7 पीपल्स पार्टी 172 में 4 आज़ाद हैं, जिसके अंदर बिलाल वड़ायत साहब हैं, जिसके अंदर कासिम लंगा साहब हैं, जिसके अंदर जुगनू मोहसिन साहब हैं और जिसके अंदर अहमद अली औलख साहब हैं। तो ये अजहर चांडिया साहब को मिला लें तो 177 ये बन जाती है तादाद, 177। राह हक मिला लें तो 178 तक चली जाएगी। उधर से अगर डिप्टी स्पीकर को माइनस कर दें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है तो वो 157 पे हैं, 10 ऐड कर लें काफ लीग के तो 167। तो ये वाज़ेह फ़र्क है। सरदार अवैस लगारी ने कहा अगर मुनर्रिफ अरकान का 1 माह में फैसला हो सकता है तो फॉरेन फंडिंग का 7.5 साल में फैसला क्यों नहीं हो सकता। हम बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो एक कोलिशन है पंजाब में, उसके ज़रिए से आज हम चैलेंज करते हैं, आपके पास नंबर है ना, तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसका इजलास बुलाने का इख्तियार आज चौधरी परवेज़ इलाही खुद रखता है, वो कल इजलास कॉल करे। परवेज़ इलाही के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने मूव किया हुआ है, 1 महीना हो गया, 7 से 14 दिन का वक्त होता है, उसके बियॉन्ड आप लेके नहीं जा सकते। फॉरेन फंडिंग केस किधर है? 7.5 साल से PTI और इमरान खान कन्फेस कर चुकी हुई है कि उसके अमेरिका के हेड ने गलत फंडिंग एक्सेप्ट की, फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट की। किधर है वो 7.5 साल का केस? ताहिर क्लासरा, PTV न्यूज़, लाहौर।